جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اصغر دیوبندی کیوں ذلیل ہوتے ہو یار؟ بول کیوں تم ذلیل ہوتے ہو؟ جب قرآن اور حدیث کے جو میں نے حوالہ دیا کہ نمازی جنازہ کے بعد سنو بول کے بھائی کہتے ہو بیچ میں بولتے ہو، دیکھیں فون کاٹتے کیوں ہو؟ کیا مقصد ہے تمہاری؟ اور 10 بار فون کاٹ کے بھاگ رہے ہو۔ میں حوالہ دیا قرآن اور حدیث کے، لیکن 5 منٹ بولوں گا۔ آپ نے کہا جناب 5 منٹ نہیں، میں 2 ہی منٹ بولوں گا، اب 10 منٹ بولیے، لیکن میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کیا، ٹھیک، سورہ بقرہ کی آیت پیش کیا، حدیث پیش کیا، میں نے حوالہ دیا جنازے کی نماز کی دعا، جنازے کی نماز کے بعد دعا ثابت ہے حدیث سے، جس کا تو نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے لیے حدیث اور قرآن کی آیت تجھے نص قطعی اور قرآن حدیث پاک کا متواترہ پیش کرنی چاہیے، نہ کہ فقہ کی طرف دوڑ کر کے بھاگنا چاہیے ادھر ادھر، جو فقہ کے سمجھنے سے بھی قاصر ہو۔ چلو پیش کرو حدیث اور قرآن، پیش کرو جناب، بولیے، بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ بولیے، حدیث اور قرآن ہی سے بات کیجیے گا، ادھر ادھر بھاگیے گا نہیں۔ تم نے جو حدیث دو ہی شرط تمہارے لیے رکھا ہوں میں، حدیث اور قرآن کی سے پیش کیا۔ نہیں سنے گا، تو نہیں سنے گا، نہیں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، بولیے۔ 2 منٹ تم خاموش رہے ہو نا؟ ہاں میں خاموش ہوں، چلیے کچھ نہیں بولوں گا میں۔ تم نے جو فاخلصو تم نے جو پڑھی ہے، تو اس سے مراد کیا؟ یہ اخلاص کے ساتھ اور نماز کے درمیان کے متعلق ہے۔ نماز کے بعد جو ہے الفاظ ثابت کرو، بعد صلاۃ الجنازہ، یہ الفاظ ثابت کرو۔ جس طرح میں نے ہو گیا احناف سے بعد صلاۃ الجنازہ پر میں نے یہ دلیل پیش کیا، احناف سے بعد صلاۃ الجنازہ، لأن اکثر صلاۃ الجنازہ بالدعاء ولا يصلي على صبي وهو على الدابة۔ اور ایک میری روایت میں نے پیش کی فقہاء احناف سے، اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء، اور ایک میں نے حوالہ پیش کیا وہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا بالکل منع ہے، منع نہیں ہے، اس کا ترجمہ آپ کو آتا نہیں ہے۔ پھر خاموش رہو، وہ ترجمہ آپ غلط کر رہے ہو نا، تو بتا رہا ہوں میں۔ پھر خاموش رہو، اذا فرغ من الصلاۃ، جب فارغ ہو جاؤ جنازے کی نماز سے، لا یقوم بالدعاء، بالکل یہاں صاف لفظ کے ساتھ بعد صلاۃ الجنازہ کا لفظ ہے۔ حدیث دعا پڑھنے کی نماز، پھر خاموش رہو، آپ بولیے، پھر خاموش رہو، بولیے، خاموش رہو نہیں تو بولے کہ بعد صلاۃ الجنازہ ہو، بعد صلاۃ الجنازہ، یہ الفاظ جناب من اسی کا جواب دیا۔ آپ جو پیش کر رہے ہو نا فقہ سے، تو وہ آپ سمجھنے سے اس کو قاصر ہو، سمجھ، واللہ بتا رہا ہوں، وہاں پر جو صف میں کھڑے رہتے ہیں نا، کھڑے مت رہو، کھڑے رہ کر کے یہ صف میں کھڑے کے، تاکہ اس کو نماز میں شمار نہ کرنے کوئی، وہ دعا الگ چیز ہے، اور نمازی جنازہ یہ الگ چیز ہے جو پڑھتے ہیں میت پر، جس کے دعا کرتے ہیں 4 تکبیرات، یہ ایسے بھی دعا کرتے ہیں، وصلی اللہ تعالی وادعوا لہذا المیت بھی دعا کر سکتے ہیں، نویت ان اودیہ للہ تعالی بھی دعا اللہ رب العزت کے لیے۔ ارے امام ہو یار ہاں جنازے نمازی دعا نہیں آتی؟ دعا نہیں، نیت میں نے نیت کی، دعا کرنے کی بات، دعا سے تو انکار کر رہے ہو تم، اور جو تو نے پیش کیے ہو، سن لو پہلے، بیچ میں نہیں بولو، بیچ میں خلل ڈالو نہیں، سنیں، آپ نے جو حوالہ دیا ہے، آپ نے جو سنو پہلے غور سے سنو، ارے یار غور سے سنو، بیچ میں بولو نہیں، بیچ میں اصغر دیوبندی بیچ میں بولو نہیں تو جس طرح فون کاٹ کر کے بھاگ رہے ہو نا ذلیل و رسوا، اسی بھاگتے رہو۔ سنو غور سے سنو، جب کہ تو نے حوالہ دیا ہے فقہ کے، اب کہاں بھاگ گیا یار، عجیب تماشا ہے، 2 نیت بتا رہا ہوں میں، نیت آپ کو سیکھنی ہے، نیت آپ کو سیکھنی ہے، عربی میں ہی میں بتایا، وصلی للہ تعالی وادعوا لہذا المیت، اور اگر مقتدی ہو اقتدی تو بہذا الامام بھی کر سکتے ہیں۔ نیت کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ نیت جناب سنیے اصغر دیوبندی،
नियत ना हदीस में है ना कुरान में साबित थी, इसके लिए बस इतना है जनाब। ये तो सुनो, ये जाहिल मत बनो यार। नियत दिल के नाम की इरादा है, अगर जबान से भी अगर कर ले। अरे यार कुरान से साबित है ये जनाजे की नियत, फिर झूठ बोल रहे हो देवबंदी, फिर झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल। अरे यार नियत अभी का है कि कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। नियत जैसे भी पढ़ सकते, दोनों एतबार से भी जैसे पढ़ सकते हैं, चाहे उर्दू में करो अरबी में करो, कोई अर्थ नहीं, कोई गिरफ्त नहीं। लेकिन आपने कहा, मैं अरबी में सुना दिया आपको ना, आपको सुना दिया शॉर्टकट में, उसल्लिया लिल्लाहि ताला, ठीक। मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व ताला के लिए, ठीक। वदऊ लिहाजिल मय्यती, और दुआ इस मैयत के लिए। अगर मुक्तदी हो इक्तदू बिहादिल इमाम, शॉर्टकट में बता दिया। अब चाहे उर्दू में कहो या फारसी में करो, सुनो जैसे कहो जैसे। और अरबा तक वो भी है जी, बहुत ज्यादा नियतों में अलग अलग करके आए हैं, उसमें कोई ये आपके मैं देवबंदी के सुनिए अली असगर साहब, मैं देवबंदी किताब है ना, जरूरुल मुस्लिमीन है, खुर्शीद बुक डिपो से, और जरूरुल मुस्लिमीन के तहत ये आपके देवबंदी लोग छापे हैं, यही नियत तरीके हैं। तो आपके नियत में आपको बता दिया, सुनो आप गौर से। आप जो फिक्र की तरफ इधर उधर टाइम को जाया मत करो। असगर देवबंदी देखो वक्त को जाया करते हो। तुमने कहा है कि दुआ की नमाज के जनाजा के बाद दुआ मांगना, तुम मौजू से भटको नहीं, तुम समझ गए हो कि हदीस और कुरान से जनाजे के बाद मैंने नियत दुआ करना साबित कर दिया हूँ। और आप जो पेश किए हो फिक्र से, वहां पर खड़े होकर के नमाज के बाद खड़े होकर के जिसे सफ में खड़े होते हैं वो वैसा हट करके दुआ करने की इजाजत है। लेकिन तुम वही किताब आगे पढ़ते तो तुमको समझ में आती। लेकिन अफसोस है तुमको कौन मौलवी पढ़ाता है यार। जब हदीस में जाहिर हो गया, कुरान की आयतों में जाहिर हो गए, साफ मिल गया, हमें हुक्म मिल गया और ये हमें मिली है, तो नमाज जनाजा के बाद दुआ करना कुरान और हदीस से साबित है, जिसका इनकार करके देवबंदी क्या हो रहे हैं, शैतान हो रहे हैं। आपको मैंने कहा था हदीस पेश करो, लेकिन हदीस पेश करने से कासिर व खासिर रहे। कुरान की आयत का क्या पेश कर रहे हो, फगसिलू वजूहकुम, यानी चेहरा धोवो, वजू वाली आयत पे ठीक कर रहे हैं। वजू हुक्म नहीं है, वजू हुक्म है, वजू हुक्म वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे मैल निकालो यार, तुम नुक्स निकालने के चक्कर में रहते हो। लेकिन तुम्हारा अकीदा खराब है, अकीदा दुरुस्त करो। कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हो तुम, समझे। लोगों को गुमराह मत करो असगर देवबंदी। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, हदीस और कुरान से करीब करो। तुम हदीस और कुरान से दूर करने की कोशिश करते हो, जबकि मैं हवाला दिया, तुम्हारी जनाजा निकल रही है। तुमको जो हदीस पेश करो कह रहे हैं तो कहाँ जाते हो, फिक्र की तरफ दामनगीर अख्तियार करने के लिए, वो भी फिक्र के मसला समझने से कासिर हो कासिर तुम हो, समझे। चल अगर हाथू बुरहानुकुम कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो कुरान हदीस से दलील पेश करो, वल कुरान हदीस से पेश करो बस। हाँ तुम सिर्फ कुरान हदीस मानते हो, फुकहा तुम्हारे लिए मुतबर नहीं है। अरे यार तुम फुकहा को समझने से तूल से वालत करोगे, तुम इधर उधर। जनाब वो हमारे लिए दलील और हुज्जत है, और हदीस और कुरान से बाहर नहीं है हमारे फिक्र की किताब। लेकिन तुम उसको उलट फेर करके समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हो ना। जल्दी हदीस पेश करो, जैसे तुमने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो हदीस पेश करो, कहाँ पर मना किया है ना। झूठ बोले हो तुम। हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारे नजदीक कुरान हदीस खाली मुतबर है या फिर इज्मा क़ियास भी है? जनाब आपने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं, तो हदीस में होगी वो बात या कुरान में होंगे? तुम्हारे मुजद्दिद साबित करूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने कहे हो ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं, कोई सहाबा नहीं किए हैं, तो मैं जनाब इधर उधर मत जाए। हदीस और कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पढ़े, वो हदीस पढ़े। और कुछ बाकी है मैं साबित अब बोलूं मैं? नहीं बाकी नहीं, सिर्फ हदीस और कुरान पढ़े, इधर उधर की बात मत करें। मतलब तुम्हारे यहाँ तुम्हारे फिर बचने के लिए इधर उधर। आपने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो वो हदीस पेश कर। हाँ तो मैं साबित करूंगा ना। हाँ पेश कर बस साबित करूंगा, मरोगे तब साबित करोगे। तुम्हारे घर से हमारे घर से
तुम्हारे घर हमारे घर, हदीस और कुरान हमारे और आपके नहीं है, हमारे बाप दादा के नहीं है, तुम्हारे बाप दादा के नहीं है, समझे? सब कोई मानता है उसको। तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी है ना? तो वो हदीस पेश कर, अरबी मतन पढ़, अरबी मतन पढ़ और हदीस पेश कर, ओनली वन। अब खामोश रहेगा तू? चल खामोश हूँ मैं, अब पढ़ो। तुमने एक बात कही तुमने एक बात कही कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ का इनकार करके तुमने इब्लीस वाला काम किया। इब्लीस वो ही मैं कह रहा हूँ। तो अरे फिर बोल रहे फिर हदीस और कुरान पेश करो। हाँ तुमने ही बात कही, मतलब तुम्हारे मसलक में बेरेलवियत में जो जनाजे की नमाज के बाद से दुआ का इनकार करे वो शैतान है, इब्लीस है, काफिर है, मुशरिक मरदूद है ना? तो तुमने अपने इस कौल से इमाम आजम अबू हनीफा को शैतान करार दिया। फिर फिक्र की तरफ भाग रहे हो। तुमको उसमें भी समझाने की कोशिश की मैं किया कि खड़े होकर के एक जगह दुआ करने से ममानियत की है, उसमें मत जाओ। सिर्फ तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी तोहमत आयद किए हो ना। हदीस पेश करो, बोलो नहीं, हदीस पेश कर, फोन काट के भागना नहीं, पढ़ हदीस पढ़, ओनली वन हदीस। तुमको मैं जिंदगी भर टाइम दिया, समझे? कोई भी किताब में 114 किताबों या सहायता में से एक हदीस लाओ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी निस्बत किए हो ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। क्यों देवबंदियत की इतनी जरूरत हो गई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि तुमने कहा है और सहाबे किराम ने नहीं किया है, तो वो दलील सहाबी की दलील कुरान में या हदीस में मौजूद होगी, वो पेश कर। बस इधर उधर बचने के लिए मत भाग। चलिए, कहाँ मुंह बंद हो गए? बोलिए हदीस और कुरान ही पेश करना। मैंने ये कहा था नबी अलैहिस्सलाम से मना साबित करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सही हदीस साबित करूंगा। अब सही हदीस या ज़ईफ हदीस पेश करो। ठीक है, मैं कहीं साबित, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने झूठी निस्बत की है ना। मैं नहीं रहा हूँ ना, तुम खामोश रहो। हाँ पेश करो। ठीक है, अब खामोश रहो। तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है गायबाना नमाज जनाजा जायज नहीं, ये बुखारी शरीफ है, लिखी है, ये मुस्लिम शरीफ है। तुम्हारे मुजद्दिद तो कुरान। तुमने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी निस्बत बांधने से क्यों मर नहीं जाते हो यार? अफसोस है। मुजद्दिद की बात तो कुरान से भी आ रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन कहा है? किसकी किताब में लिखे हुए हैं? कुरान से आला है का? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अफसोस, तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत आयद किए हो, वो हदीस पेश करो, हदीस पेश करो, हदीस पेश करो। असगर देवबंदी नहीं सुनेगा, नहीं सुनोगे नहीं, तुम भाग रहे हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी तोहमत आयद किए हो, फोन काट के 10 बार भागे हो। कह रहा है कि कुरान और हदीस से ही पेश करना है, नहीं दिलगत के नजदीक। अरे यार, तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी निस्बत किए हो, तुमको मर जाना चाहिए उसी वक्त, समझे? नमाज के बाद दुआ का मुनकिर हो, जनाजे की नमाज के बाद दुआ से रोकने वाला शैतान है, मरदूद हो तुम, समझे? फुक़हाए अहनाफ की किताब समझने से तुम कासिर हो, कसम से। वारूसे समझने से भी तुम्हारे छोटी अक्ल खोपड़ी में, उल्टे खोपड़ी में नहीं आएंगे बात, समझे? आप बकवास कर रहे हो, समझो। और यूट्यूब में मैं डालूंगा इसको भी। तुम जनाजे नमाज के बाद की दुआ को रोकने वाला तुम शैतान हो और हदीस का इनकार करने वाला खबीस हो, समझे? कुरान की आयतों का इनकार करने वाला देवबंदियत। अफसोस है। और हदीस को इनकार करने वाला, अभी तो मैं तो वल्लाह बता रहा हूँ असगर देवबंदी, 1-2 हदीस नहीं, सुन हदीस। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि ताला मिनद दुआ।